So good morning, everyone. Today we are going to learn about the MS Word insert option. We already study about the insert option, some features like table, picture, clip art, shapes, smart art we studied yesterday. Okay. So today we are going to practice for the header option, footer option, and there's a page number option also. Page number, and then word art and drop cap option. Okay. These options we need to practice, and insert box also. Insert text box. These options we are going to study today. So let me take a new page. So to apply all these options, I need some text. Okay. So let me insert some text here. Equal RA and D, and I need some paragraphs. Suppose I need here 40 paragraphs. How many? 40 paragraphs. Equal RA and D, and then I'm going to insert here 40 paragraphs. Okay, then press enter. देखते हैं कितना पेजेस ऐड हुआ है यहाँ पे. कोई बता सकता है यहाँ पे कितने होगा? And you can write your answer in a chat option. If you have any question, okay, any doubts, so you can write your concern in a chat option. So how many pages there? I insert 40 paragraphs, so it equals to 5 pages. You can see at the bottom of the page. Okay, this is the first page of the file. This is the third page, so it will automatically show here. Third page. Okay, यहाँ से नीचे show करता है. Good. Fifth page. Good. Okay, so now there's a 5 pages. अब क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा adjust करते हैं ना. We will arrange. Select all. You can select with the mouse, or you can press shortcut key from the keyboard. Control A. Control A. Control plus A to select all. Okay. Control plus A to select all. Control A सबको select किया. Then you have to press Control J for justify, or otherwise you can click here. So I'm going to press Control J, justify. ये पूरा adjust हो गया. I'm going to write here some heading. सपोज क्या लिखा है यहाँ पे, बॉस को दे लिया, इसको सेंटर में कर देते हैं, मिडिल में. ठीक है, और बोल्ड कर दो, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो. बाकी अगर आपको चाहिए तो ये पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो यहाँ से. एंड देन यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल इफ यू वांट. चलो ये कर दिया. एंड आई वांट टू इंसर्ट सम पेजेस. पेज नंबर क्या करना है यहाँ पे? पेज नंबर. सपोज इट शुड शो ना. सपोज ये स्टोरी है, कोई आर्टिकल है, कोई बुक में हमने कोई स्टोरी लिखा है, so I need page number on every page. हर एक पेज पे क्या लिखा होना चाहिए? पेज नंबर लिखा होना चाहिए. So you have to use this option: header, footer and page number. Header, footer and page number. ये तीन ऑप्शन होता है header footer लिखने के लिए. And whatever will you write in a one page, it will come on the all the pages. ये हर पेज पे आएगा. ठीक है. तो suppose you want to write something on the top of the page, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे header पे क्लिक करेंगे. You can use this option. Blank option है. सिंपल है, आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो. सपोज मैं लिखा है भोगल सेंटर. Then you have this option to bring it right or left side, and then click on design and then click the option close and header footer. Otherwise you cannot edit on the page. Now देखो यहाँ पे लिखा गया ना भोगल सेंटर,
So not only one page, it will come to the every page. ये हर पेज पे लिख के आएगा. Okay, this option called the header. Same feature where we can use, suppose you are writing a book, कोई भी story book लिखा है, or otherwise you can see in a Bible, Quran and other books also ना, books के ऊपर name लिखा होता है, same like that. और भी हमारे जो स्कूल कॉलेज का बुक होता है वहाँ पे बुक्स का नाम लिखा होता है, चैप्टर का नाम लिखा होता है. So we have to use the same option, header and footer for it. ठीक है, ये तो था अगर if you want to write something on a header. It's a simple way. Okay, if you don't want, so you can delete this also. हटा दिया. Insert and then header. If you want to write something in a कुछ और स्टाइल से लिखना है, लाइंस वगैरह आपको चाहिए तो ये लिख सकते हो, आप यूज कर सकते हो. Like I'm writing at the Bhogal training team, going to select this, going to change the font color also, italic also. You can click here like this, adjust on the left right side, then click on design and then close it. इस पे भी आएगा, next page पे भी आएगा, ऐसा आएगा. Okay, now insert. Now footer. These all are feature of the heading. ठीक है, आपको heading में top of the page, if you want to write anything in this format, so you can use it. If you don't want to write, so you can remove this header. Okay, I removed. Okay, now I want to write something on a footer, so click on the footer option. So if you want to write some only the page number, so you can use this option. So only the page number will come like this. That's the page number 1, this is page number 2, page number 3, page number 4. Okay, insert, ये है हमारा footer. If you don't want, so you can remove it. Footer पे click करते हैं, और भी बहुत सारे options है. Suppose you want to write name, page number also and some title also. ये page number आ जाएगा, यहाँ पे title भी लिखते हैं. ठीक है, like Bhogal training team, I want to write here and then close it. So same thing will come here, title and this in every page. This option is called the header and footer. Okay, I hope this option clear for everyone. So if you don't want it, so you can remove it. And there's an option page number. So with the help of this page number, you can write page numbers. Only page number will come. Top of the page, bottom of the page, but in the top of the page, at which side? Left side or middle or right side. Okay, or you want to write page and then number. These all are options you have. आपको जो भी options है आपको लिखना है, you can choose any one of the option. ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है. टॉप में लिखने के लिए, बॉटम में लिखने के लिए, पेज मार्जिन देने के लिए. आपको सपोज यहाँ पे लिखना है, साइड में लिखना है लाइक दिस, तो पेज नंबर यहाँ पे आएगा इसकी जगह पे. ठीक है, यहाँ पे भी था और यहाँ पे आपने जस्ट किया. इस काम करते हैं तो रिमूव कर लेते हैं पेज नंबर सारा जितना भी लिखा है हमने. नाउ इंसर्ट पेज नंबर, यूज दिस ऑप्शन, तो ये ऐसे आ जाएगा. ऑन द दिस साइड इट विल कम, नॉट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. पेज 1, पेज 2 ऐसे आएगा. So totally it's up to you that which format you want to use for your document. Okay, so I'm going to remove this also, page number remove किया इसको. So I hope header, footer and page number, this option clear. So let me unmute your mic and ask me. This option is clear, header, footer and page number to everyone? Yes, sir. Yes. Okay, fine. So the next option, okay, this is the word art option. This option is the word art. एक काम करते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा डेटा डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए अब. इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया. नाउ आई हैव डेटा फॉर ओनली वन पेज. थोड़ा सा और कम भी कर लेता हूँ, चलो ये कम कर दिया. राइट, नाउ दिस ऑप्शन वर्ड आर्ट. इफ यू वांट टू राइट समथिंग इन स्टाइलिश ना हेडिंग, so you can use this word art option.
और यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, कोई भी डिजाइन, और क्लिक करके यहाँ से इसको चेंज कर दो, वर्ड आर्ट स्टाइल हमने लिख दिया, ठीक है। देन यू कैन ब्रिंग इट एनीवेयर, कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हो पेज के ऊपर आप। फॉन्ट साइज छोटा कर दो, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए पूरा नहीं आया वो, ठीक है। कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम हियर, लाइक दिस। फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यू कैन चेंज द स्टाइल, और भी कोई चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। And not like this, you can write this thing in a between of the page, middle of the page also. सपोज आपको ये यहाँ पे नहीं लिखना है बॉस को दिल्ली, आपको उसी स्टाइल में लिखना है बॉस को दिल्ली, सो ये है ना, यहाँ पे लिख दो बॉस को दिल्ली। ठीक है, आई जस्ट राइट बॉस को दिल्ली, देन यू कैन ब्रिंग इट हियर इन द मिडिल ऑफ द पेज, और इसको एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास ये वाला ऑप्शन है, यू ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट ऑप्शन, with the help of this you can make border also, in case of font size इसके अकॉर्डिंग ये अच्छा लगेगा ऐसे। So this word art option also clear to everyone? Yes, sir. Okay. Sir, आपने जो ये Yes, sir. ठीक है, now let me go to the next topic, okay? इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये नहीं चाहिए मुझे, और इसको एडजस्ट कर देते हैं ऊपर, हाँ। ओके, अब यूज करना है ड्रॉप कैप। व्हाट इज अ ड्रॉप कैप? आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा है कि सपोज यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिखा होता है, कुछ स्टोरीज लिखा होता है, बट ये फर्स्ट कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, लाइक इस जहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रीव्यू है शो कर रहा है, देखो इस टाइप का लाइंस होता है, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा बड़ा लिखा होगा और बाकी सब इसके इक्वलाइज हो जाएगा, तो इसको सेलेक्ट करना होता है फर्स्ट कैरेक्टर का ओनली, देन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप कैप ऑप्शन, और यहाँ से दो ऑप्शन होता है, ड्रॉप एंड मार्जिन। ये ऑप्शन करोगे ड्रॉप तो ये साइज बड़ा हो जाएगा और ये पैराग्राफ के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, इट विल एडजस्ट इनसाइड द पैराग्राफ। एंड इफ यू क्लिक हियर एंड देन मार्जिन ऑप्शन, तो ये बड़ा होगा और ये पैराग्राफ से बाहर होगा इस टाइप से। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इसमें दो ऑप्शन होता है, ड्रॉप एंड इन मार्जिन, ओके, ड्रॉप एंड Sir, I have a question. Can प्लीज I? म्यूट द माइक, म्यूट माइक, I will give you a chance to ask question everyone, okay? Just wait. Is this option Okay, clear? Anyone have any doubt in this option? किसी को कोई भी डाउट ये वाला क्वेश्चन के अंदर, ये वाला फीचर के अंदर? If you have doubt only about this feature, so ask me. Anyone have any doubt on this? No. No, sir. Okay. So this option is also clear, word art option. So word art and drop cap option, okay? कौन सा ये क्या क्वेश्चन है, ये वर्ड आर्ट वाला जो था, ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. देखो वर्ड आर्ट का ऑप्शन क्या होता है कि सपोज आपको कुछ स्टाइलिश में हेडिंग लिखना है, कुछ लिखना है, तो आप इस वर्ड आर्ट का यूज करते हो। तो वर्ड आर्ट का ऑप्शन ये यूज किया मैंने, यहाँ से कुछ भी ऑप्शन ले लो, कोई भी स्टाइल ले लो, एंड यू कैन राइट एनीथिंग हियर। सर मेरा मतलब है कि हम Suppose- पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। नहीं, पैराग्राफ भी लिख सकते हो बट इट डजंट लुक गुड। यू कैन राइट Okay. पैराग्राफ आल्सो बट इट डजंट लुक गुड ना, वो तो आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो। आपको आपने ये सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से अप्लाई कर दो।
सर वो जो बड़ा सा ओ है ना पैराग्राफ के शुरू में, वो ओ कैसे बड़ा हुमायरा करते हैं? वेट वेट वेट, देखो अभी जो हमने ये वाला यूज किया था ना वर्ड आर्ट का ऑप्शन, ये वाला, तो आपको अगर पैराग्राफ पे आपको अप्लाई करना है, सो इट्स वेरी इजी। आपने जो पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ को लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, कहाँ पे, होम पे जाके ये वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल, तो यहाँ से आप अप्लाई कर दो, हो जाएगा। Okay, sir. ठीक है, वर्ड आर्ट में जाने की जरूरत Okay. नहीं है। बट सी, नाउ इज इट लुक गुड? No. So that's why, so if you are using this word art option feature, तो ये वाला स्टाइल जब यूज करोगे तो पैराग्राफ के लिए मत करो, अगर आप कुछ हेडिंग लिख रहे हो तो उसके लिए यूज करो, ठीक है। हमारा नाउ आस्क Okay, योर sir. क्वेश्चन। सॉरी सर, ये जो मैंने पहले पूछा था ये वाला ये ओ, हाँ वही ओ। बहुत इजी होता है, देखो आपने क्लास में अभी लेट ज्वाइन किया इसलिए आपने मिस कर दिया वो, आई थिंक। मैं फिर से बता सॉरी देता हूँ, सर। मैं फिर से बता देता हूँ। सिर्फ ये फर्स्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, ओके, देन क्लिक ऑन दिस इंसर्ट ऑप्शन एंड देन ड्रॉप कैप। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, ड्रॉप एंड मार्जिन। ड्रॉप किया तो ऐसे आ जाएगा, इन मार्जिन किया तो वो सेम साइज होगा बट ये पैराग्राफ से आउटसाइड होगा, बाहर। बट इफ यू विश कि जो ओ है, इट शुड नॉट इक्वल टू 3 लाइन, इट शुड इक्वल टू ओनली 2 लाइंस, 2 लाइन के बराबर होना चाहिए, तो आपको सेलेक्ट करो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप ऑप्शंस, ड्रॉप कैप ऑप्शंस, ठीक है, जस्ट क्लिक द ऑप्शन ड्रॉप कैप ऑप्शंस, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे चेंज कर दो फ्रॉम 3 टू मेक इट 2, ठीक है। यू कैन इंक्रीज ऑल्सो द वैल्यू, यू कैन इंक्रीज ऑल्सो, लाइक मैंने 10 कर दिया, 10 हो जाएगा। बिल्कुल समझ गई सर। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. And this header option also clear, footer option is also clear, and हाँ, page number is also clear, okay। Yes, sir. अच्छा एक चीज और है, टेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स? सपोज आई एम राइटिंग वन स्टोरी और कुछ भी एक आर्टिकल लिखा बॉस्को के बारे में, सपोज ये है, और मुझे बीच में एड्रेस लिखना है बॉस्को का, ठीक है, तो आई कैन यूज दिस ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स। इसमें से कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हो, आई एम चूजिंग द सिंपल वन, ये चूज किया, इसको एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, सपोज यहाँ पे बॉस्को का एड्रेस ही लिख लेते हैं, ठीक है। आपके ऊपर आप क्या लिखना चाहते हो, बॉस्को दिल्ली, The footer option. टेम्पल रोड, भोगल, लाइक दिस एड्रेस, ओके। इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट सेलेक्ट किया है सबका, ठीक है। ये सबको सेलेक्ट करके क्लिक हेयर, चेंज द फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम हेयर, साइज चेंज करना है तो साइज चेंज कर दो, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो, इटैलिक करना है इटैलिक करो, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। पैराग्राफ में जाके यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन बताया था आप लोगों को, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, मेक 0 और क्लोजर आ जाएगा ये वाला, ऐसे। सेंटर में करना है तो सेंटर ऑप्शन करो, ये एडजस्ट हो गया। अगर आपको इस बॉक्स के अंदर कलर करना है तो ये वाला ऑप्शन बताया था आपको, एंड देन क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट ऑप्शन और ये सेम रैप टेक्स्ट ऑप्शन, इसके थ्रू आप इसको बीच में एडजस्ट कर सकते हो। Okay, so I think this text box option is also clear to everyone, right? Yes, sir. Let me show you one more example how to use this option. There's one resume, इस resume के अंदर मैंने ये वाला ऑप्शन यूज किया है टेक्स्ट बॉक्स का, ये टेक्स्ट बॉक्स है, देखो ये वाला, मैंने ऐसा आउटलाइन को रिमूव कर दिया है, ये ऐसा था तो मैंने इसको क्या किया, आउटलाइन को रिमूव किया है, सो आई कैन यूज दिस ऑप्शन टू रिमूव द टेक्स्ट बॉक्स। सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे ये है टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको आप क्या कर सकते हो, जस्ट क्लिक हियर, फॉर्मेट एंड देन रिमूव द आउटलाइंस, शेप आउटलाइन, रिमूव इट, तो ऐसा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज ऐसे किया जाता है, बिकॉज इन अ रेज्यूम आई वांट टू राइट समथिंग हियर, इस तरह से स्टाइलिश लिखना है और इट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट अलाइनमेंट लाइक दिस, तो ऐसे लिखना होगा, तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अरेंज करके लेफ्ट अलाइनमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज इफ यू राइट हियर समथिंग, अगर यहाँ पे कुछ और लिखोगे तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, पेज के यहाँ से, बट मुझे तो यहाँ पे एडजस्ट करना है ना, सो आई हैव टू मेक वन टेक्स्ट बॉक्स हियर और देन आई हैव टू राइट हियर. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir.